if you're looking to buy a home in Tri-City area and are confused कि यार luxury apartments ले, plotting लेनी चाहिए, किस चीज़ में invest करना चाहिए, because it's a big investment for you. So we have a special guest with us, Mr. Rahul Juneja, who has been doing business for over 5 years and has extensive experience in luxury apartments, basically. So yeah, Mr. Rahul, welcome to our podcast, and really thankful and grateful that you gave us time. So yeah, please. Thank you. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be on your platform. It's my pleasure to, yeah. So could you please tell us a bit about yourself, how you started with BSI, Blue Square Infra, basically, and you've been doing this from past 5 years, and your forte is luxury apartments. So please tell us about that. So Blue Sky Infra we found in 2019. Me and my partner Amish Vande. So we both worked in a corporate industry first. I'm carrying almost 10 years experience into recruitment, where we have done recruitment for all top MNCs of India. Means talk about Genpact, Wipro, IBM, Daksh, Convergys. So I was taking care of recruitment of all these companies for pan-India level, and Amish worked with the Airtel for almost a decade. 10 years in Airtel only. So carrying a corporate experience, we both entered into real estate. Somehow it was a fortunate we came together in this industry, and we started in 2019. It's been almost now 5 to 6 years. Now talk about the luxury segment. Why we have choose the luxury segment? Because हमारा day one से बहुत clear था कि हमारी audience क्या है, like किस ऑडियंस को हमने सर्व करना है एंड क्या हमारी एक नीच है ऑडियंस की. तो हम बहुत अपने कंसेप्ट से क्लियर थे कि हमने इस कैटेगरी में डील करना है, इसमें नहीं करना. देयर आर मैनी कंसल्टेंट जो बहुत टाइम से वर्किंग है, मे बी फॉर 20 years 30 years, बट दे आर स्टिल डूइंग ऑल ओवर द मार्केट. दे आर नॉट स्पेशलाइज इन टू पर्टिकुलर वन थिंग. हमारा डे वन से क्लियर था कि ब्लू स्काई इन्फ्रा को हमने उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया की जो टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स हैं, हमने उस लेवल पे लेके जाना है. तो दैट इज़ वाई वी चूज़ द लग्जरी सेगमेंट फर्स्ट, जहाँ पे हमारे लाइक आज के टाइम में वी हैव अ स्टार्टिंग रेंज. द मिनिमम रेंज स्टार्ट फ्रॉम 80 to 90 lakh, गोज अप टू 5 to 7 CR or 10 CR into luxury apartment. Okay. So talking about luxury, so every builder or developer that comes up with an apartment, they prefix the name luxury कि ये we are offering luxury apartments. So what is even luxury? मतलब हम किसको luxury मानेंगे, क्योंकि सभी luxury word use कर रहे हैं. तो what is luxury? That is a really fine question, Rahul. I really liked it. Luxury definitely have some class. Not every builder. If there are builder those who are making houses in Devavasi or maybe in Mohali in some rural area, they are also calling it luxury. But luxury has some own class. जब हम आज गुड़गांव की बात करें या दिल्ली NCR की बात करें, चाहे बॉम्बे की बात करें, वहाँ के भी दे आर वेरी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जिनको हम लग्जरी सेगमेंट में काउंट आते हैं. चाहे वो DLF के नेम्स हो, चाहे वो रहेजास हो या भूटानीज, दे आर मैनी बिल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो लग्जरी डेफिनेटली हैज़ अ क्लास जहाँ पे आप अपनी एक एमिनिटीज़ बेसिकली मैच होती हैं, और एक लग्जरी स्टैंड्स फॉर देयर सेगमेंट ऑल्सो, कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो वहाँ पे स्टे कर रही है. और आप किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हो, बिल्डर का क्या बैकग्राउंड है, एक बहुत मैटर करता है कि बिल्डर की प्रीवियस डिलीवरी क्या है. इफ़ बिल्डर इज़ फ्रॉम अफोर्डेबल सेगमेंट, अगर वो एक लग्जरी सेगमेंट में आ रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज कि वो क्या उस लग्जरी को डिलीवर कर पाएगा या नहीं. और देयर आर मैनी बिल्डर्स, इट्स मीन्स फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम दे आर डिलीवरिंग प्रोजेक्ट इन टू लग्जरी. तो लग्जरी की एक डेफिनेशन जो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज के बिगर साइजेस, प्राइम लोकेशन, प्राइम जेंट्री, व्हाट आई थिंक के मीन्स इट शुड हैव अ क्लास, और वेयर यू हैव all kind of luxury high-end amenities, talk about into clubhouse or outdoor amenities or indoor amenities. So yes, this stands for luxury. Not every builder is capable for made it luxury. And so आज के टाइम में जो मार्केट का एक सिनेरियो है वो डेफिनेटली वी कैन से इट्स अ ऑड सेगमेंट एरिया के हर पर्सन अपने प्रोडक्ट को लग्जरी कह रहे हैं. ऐसा नहीं है. आज भी हमारी मार्केट की हम बात करें तो there are only 6 to 7 projects which stands as per the category of luxury. So obviously if we are talking about luxury, तो generally question क्या आता है कि if someone is spending 5 crores, 6 crores or even 3 crores
why should someone go for apartments rather than going for buying his own land, because he'll be owning that land and can build a house over that. So who should go for apartments and not for the building their own house? See, basically, apartment don't sell real estate basically. So apartment में whenever you're moving, you are moving just based on your lifestyle. ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें पहले तो ये यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले अडॉप्ट हुआ अपार्टमेंट कल्चर, बिकॉज वहाँ पे लैंड की कमी थी, मोरओवर सी था एंड लैंड स्क्वीज थी. दैट इज़ वाई एक हाई वाइज बिल्डिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ लॉन्ग टाइम बैक. देन व्हेन इट कम टू इंडिया, बॉम्बे में सबसे पहले कल्चर स्टार्ट हुआ अबाउट दी हाई वाइज स्टैंडर्ड्स, बिकॉज वहाँ पे भी एक लैंड का इशू है. तो जब इट स्टार्टेड, लोगों ने रहना स्टार्ट किया तो दे फील सेफ, दे फील वेरी मच comfortable there in the society. Security is one of the key reasons. Number one is its security. Number two, you have all the amenities under the one roof. जैसे आज के टाइम में you have a house. Let's say you have a house in sector 9 चंडीगढ़, which is a posh area of चंडीगढ़, जहाँ पे आज के टाइम में कनाल, 2 कनाल का almost is touching to 15 to 20 CR. After spending 10 to 12 CR in particular house in Chandigarh, अगर आपने जिम जाना है, फर्स्ट यू हैव टू पिक योर कार, यू हैव टू गो टू सेक्टर 9 और मे बी सेक्टर 34, 35 टू पिक अ जिम. आपने स्विमिंग करने जाना है, यू विल गो टू एनी अनदर प्लेस फॉर स्विम. आपने जाना है, आपके बच्चों ने जाना है, आपने होम थिएटर एंजॉय करना है, यू माइट बी गो समवेयर एल्स. आपने जॉगिंग करनी है, पार्क बड़ा चाहिए तो पार्क में आप किसी सेक्टर के पार्क जाओ में. तो ये बेसिकली ये सारी एमिनिटीज़ आपको एक ही रूफ के अंडर मिल जाती हैं. लाइक आई लिव इन अ सोसाइटी, तो मुझे I feel very comfortable कि for me, my kids, my wife, they have all the amenities under one roof only. उनको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं हो, उनको पड़ती ही नहीं. बिकॉज अगर मेरे बच्चों ने फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर ने अगर कहीं बाहर जाना है तो आई फर्स्ट नीड अ कार एंड अ ड्राइवर जो उसको लेके जाए और छोड़ के जाए. देन देयर इज़ अ सेफ्टी कंसर्न, देयर इज़ अ टाइम कंजप्शन. तो ये आज के टाइम में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि पीपल आर लाइकिंग सोसाइटी लिविंग कंफर्टेबली. और इसका एक और फैक्टर भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि हम मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला का कल्चर देखें तो जो कोठीज कल्चर है वहाँ पे नोबडी टॉक्स टू ईच एवरीवन, है ना. तो एक वहाँ पे आपका सोशल्स कनेक्ट नहीं हो पाता. व्हेन इट टॉक अबाउट अपार्टमेंट्स, एक आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे आपका एक सोशल सर्कल डेवलप होता है. बिकॉज जिस फ्लैट में आप रहते हो उसी सिमिलर लेआउट का सामने एक फ्लैट है, वो भी सेम सेगमेंट का पर्सन है. अगर आपने एक फ्लैट फॉर एग्जांपल 1 CR का बाई किया है तो वो पूरी सोसाइटी जो है 1 to 1.5 CR की जेंट्री ही रहेगी. तो आपका टेस्ट मैच होगा, नंबर 1. नंबर 2, एज बीइंग अ यंगर जनरेशन, आपको वहाँ पे आपकी जनरेशन के लोग मिलेंगे. आप जब क्लब जाएंगे, आप जिम जाएंगे, आप तो आपका सर्कल वहाँ पे मिलेगा. आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपकी फैमिली का भी सर्कल बढ़ेगा. तो ये बहुत फैक्टर्स हैं. दैट इज़ वाई पीपल आर लाइकिंग लिविंग इन अ सोसाइटी. नो डाउट जो हमारा पुरानी जो हमारी जनरेशन है, दे ऑल्सो प्रेफर हाउस टुडे, बट मीन्स जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इट गेटिंग डाउन नाउ. जो सेगमेंट पहले 100 लाइक 60-40 पे स्टैंड करता था, आज के टाइम में 70% इज अ कैटेगरी ऑफ अपार्टमेंट. 30% people are looking for independent houses in the as per the budget rate in Chandigarh, Mohali, Khavad and I feel the same way as well, since एक तो security का factor तो है ही. Everybody, if I'm going out and I want to be assured that my family is safe back in wherever I'm living. So that can't be managed in if I buy a house separately, I have to manage everything and I have to pay taxes of that house. I have to manage each and everything. But if you live in a society, obviously many of the things are taken care of by the builder as well. And for the security concern, first of all, you need to hire a personal security guard for the gate. Then if you have a garden in the house, you have to hire a gardener. Then if चलो आपके पास एक बड़ा घर है, आपने घर में अंदर स्विमिंग पूल भी बना लिया, तो आपको स्विमिंग पूल की मेंटेनेंस के लिए भी you need a person. It's a huge responsibility and headache also, and it you have to pay a lot of salaries and maintenance also if you are having your own. Society में ये सब चीजें क्लब हो जाती हैं. It takes mental resources, a lot of mental resources. So yeah, I can understand why people are going for apartments and not for buying their own homes.
even though they are spending so much money, since even though मतलब कि ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है भी, फिर भी वो अपार्टमेंट्स की और जा रहे हैं. उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि आपने जो ये बात की कि द सोसाइटी जो फीलिंग है, मतलब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, दैट थिंग इज़ यू नो मतलब काफ़ी मिसिंग है जो आपके खुद के घर होते हैं. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल. एंड या दैट विल बी one of the main factors why people would be moving to societies and not buying their own homes probably. Because everybody create their own circles. जैसे आज के टाइम में मेरा एक अपना फ्रेंड सर्कल है सोसाइटी में, हम फ्रेंड्स हैं, बॉयज़ का एक अपना ग्रुप है, जो मेरा वाइफ मीन्स गर्ल्स हैं उनका एक अपना गैंग है, किड्स की अपनी एक कंपनी है जिन्होंने इवनिंग और मॉर्निंग में वहाँ पे यू नो इकट्ठे खेलना है पार्क में. तो दैट्स रियली what I like about living in the society. And for me as well, if I this would be one of the main reasons I would be going to a society rather than buying my own home. So because of my parents, they'll be safe there, they'll be having a society to connect to, so those will be the reason. After that, obviously now we've come to this part ki okay, I am buying luxury apartment, but what happens after the lifetime of the building? Say the lifetime of the building was 50 years, 60 years, whatever it was. After those 50 and 60 years, what happens to the building? What happens to the house owners? Where do they go? सी इसका आप एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं जो आज के टाइम में रीडेवलपमेंट चल रही है, चाहे वो बॉम्बे है, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर. तो होता क्या है कि जैसे 50 इयर्स बैक, इससे पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो एक हाइट अप्रूवल आती थी, FAR आती थी, वो S+3 की आती थी या ग्राउंड+5 स्टोरी की आती थी. बिकॉज एज पर उस टाइम की जो पॉलिसीज़ थी रियल एस्टेट की, उस टाइम रेवा नहीं था बॉडी में, उस टाइम कोई ऐसी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन नहीं हुई थी, तो लोगों ने उस टाइम घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे. जब लैंड की शॉर्टेज आई तो वहाँ पे अपार्टमेंट बनने स्टार्ट हुए. तो जो स्टोरी 3 स्टोरी या 4 स्टोरी थे, वहाँ पे कुछ नए बिल्डर्स आए, उन्होंने वहाँ की लैंड को दोबारा से डेवलप किया. उस डेवलप स्टेज पे उन्होंने दोबारा से लैंड को बनाया. तो आज के टाइम में भी आप देखोगे बॉम्बे में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो रीडेवलपमेंट स्टेज पे हैं, जहाँ पे आज के टाइम में कुछ पुराने क्लस्टर्स हैं जो 30 साल पुराने या 40 साल पुराने या 50 साल पुराने बने हुए थे. अगर वहाँ पे 200 लोग रहते हैं और आज वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लैंड, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 एकड़ की लैंड है, वहाँ पे आज के टाइम में सिर्फ 200 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं. बट आज की अप्रूवल्स और आज की पॉलिसीज़ के हिसाब से वहाँ पे 500 अपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं. तो व्हाट हैपन्स इज जो भी वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया के या सिटी के रिनाउंड बिल्डर्स होंगे, वो वहाँ के रेजिडेंट्स को अप्रोच करेंगे रीडेवलपमेंट के लिए कि आपकी इसी पे हम सोसाइटी को रीडेवलप करेंगे, यहाँ पे हम 500 अपार्टमेंट डेवलप करेंगे, इसको हम हाई राइज बिल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे. एंड टिल द टाइम जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, आपको हम एक सर्टन सोसाइटी में शिफ्ट करेंगे ऑन द रेंटल प्रॉस्पेक्ट. आपका रेंटल भी हम बियर करेंगे. Yes, and after the completion of the projects, हम आपको आप ही के सेम यूनिट एरिया अलॉट करेंगे जिस एरिया में आप रह रहे थे. फॉर एग्जांपल 200 फैमिलीज हैं, तो वो 200 जो अपार्टमेंट्स होंगे वो बेसिकली उन्हीं फैमिलीज को जाएंगे जो ऑन करते थे उस पुरानी सोसाइटी में. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो दे गेट सम बेनिफिट फ्रॉम द बिल्डर टू बिल्डर, वो पॉलिसीज होती हैं. रेस्ट 300 जो होंगे, जो बचेंगे, वो मार्केट में सेल होंगे. वहाँ से बिल्डर या जो भी डेवलपर होगा वो अपना प्रॉफिट गेन करेगा. तो इसमें विन विन सिचुएशन है दोनों की. बिकॉज जो पर्सन पिछले 30-40 साल से पुराने घर में रह रहा है, आज के टाइम में उसका स्ट्रक्चर ओल्ड हो चुका है, उसने जो घर में उस टाइम यूज़ किया था इंटीरियर, वो पुराना. Essentially they are getting a new home. Yes, they are getting a new home without paying any appreciation. No, that's this was one of the questions that people don't know about. वो कहते हैं कि यार 50 साल बाद क्या होगा, क्योंकि ये डिस्करेज करता है काफ़ी लोगों को कि यार मैं 50 साल तो चलो ठीक है मैं तो रह लूँगा, लेकिन मेरी अगली जनरेशन, मैंने तो इतना पैसा स्पेंड कर दिया ना, तो मतलब उसके बाद तो दिस वाज वन ऑफ द. आज के टाइम में आप देखोगे बॉम्बे में ये बहुत कॉमन है रीडेवलपमेंट. आपने अभी जैसे धारावी का भी एक बहुत बड़ा भी अडानी ने जो उसको टेक ओवर किया, तो धारावी ऑल्सो और प्रोजेक्ट जहाँ पे जितने भी आज के टाइम में वो पॉवर्टी लाइन के अंडर जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं, तो उनको वहाँ पे वो अपार्टमेंट बना रहे हैं, उनको वो वहाँ शिफ्ट करेंगे पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स में. देन बाकी के जो अपार्टमेंट बनेंगे वो उसको अकॉर्डिंगली सेल करेंगे इन द मार्केट. तो ये बहुत बड़ा एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है धारावी का, विच इज़ द बिगेस्ट स्लम ऑफ
India, I think so, in Mumbai. Okay. So coming now, we've already talked about residential people who are looking to buy home. But what about the people who are, looking for an investment? हाँ, पहले तो मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करता था, ठीक है, अप्रिसिएशन होती थी, and I get the benefit. Is there a chance to invest into, these luxury apartments and have, some sort of ROI, a big ROI, I would suppose, कुछ ऐसा है इसमें? See, real estate is real estate. Remain real estate always. चाहे वो प्लॉट हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे बंगलो हो, चाहे अपार्टमेंट हो. रही बात ROI की, आज के टाइम में आप देखोगे कि देयर आर फ्यू सोसाइटीज़ इन द मार्केट जहाँ पे आप कमर्शियल से भी ज़्यादा रेंटल अर्न कर रहे हो रेजिडेंशियल में. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल PR7 पे आज के टाइम में देयर आर सोसाइटीज़ कॉल होमलैंड और JLPL एक्सेट्रा सोसाइटीज़ हैं. तो जिन्होंने वो प्रोडक्ट 2014-15 में बाय किया है एट द प्राइस ऑफ, उस टाइम जो प्राइजेस बहुत कम थे, अराउंड 80 लाख 90 लाख 1 CR के आसपास प्राइस थे. आज उस पर्टिकुलर फ्लैट का जो रेंटल है दैट इज 85 to 90,000 रुपीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट 12% एनुअल बेसिस अगर हम कैलकुलेट करें उस टाइम से. चलो हम उसके आज एक अप्रिसिएशन भी ले सकते हैं कि आज वो प्राइस अप्रिशिएट होकर 2 CR पे पहुंच चुका है या 2.10 CR के आसपास है. 2.10 पे भी अगर आप 80,000 रुपीज़ की रेंटल ले रहे हो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5% एनुअली यू विल बी गेटिंग रेंटल. एंड प्लस टॉक अबाउट दी अप्रिसिएशन ग्रोथ. जो फ्लैट आपने 6-7 साल 8 साल पहले आपने 80 लाख रुपीज़ या 90 लाख का लिया था, टुडे इज टचिंग टू 2.5 CR. इसकी बिग एग्जांपल अगर आपने अपार्टमेंट की लेनी है, टॉक अबाउट DLF कैमेलिया. तो DLF कैमेलिया लॉन्च इन 2013 एट द प्राइस ऑफ 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. उस टाइम उनका फ्लैट कॉस्ट करता था 17 CR के आसपास गोल्फ कोर्स रोड पे. आज के टाइम में इट्स बीन नाउ यू कैन से 11 ईयर्स, 2013 टू 2024. सेम फ्लैट जो पर्सन ने 17 CR की बाय की थी, आज वो 75 CR का है. The highest amount paid by customer in Camellia was 100 crore. Last unit, 16,000 square feet unit, was sold at 100 crore in Camellias. So that is the potential of the market. There is a big opportunity in apartment space as well for investors. Definitely. आने वाली आप देखोगे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, they don't buy house reason being जो एक क्राइम रेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है. जितना ज़्यादा आप देखोगे आज के टाइम में, यूजुअली डे टाइम में ही स्नैचिंग एंड ऑल चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहा है. तो पीपल विद ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द फर्स्ट कंसर्न इज सिक्योरिटी. चाहे वो आपके पेरेंट्स की हो, चाहे वो किड्स की हो, चाहे वो आपकी अपनी हो. तो सिक्योरिटी ऑलवेज कम्स ऑन द प्रायोरिटी इन द कमिंग ईयर्स जो हम देखेंगे. और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, जैसे आज के टाइम में आई एम लिविंग इन द सोसाइटी, तो डेफिनेटली जब व्हेन माय डॉटर्स दैट बाय हाउस इन द फ्यूचर, डेफिनेटली बिकॉज उनको वो उसी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, तो उनको कोठी कल्चर पता ही नहीं है. कोठी कल्चर होता क्या है, रहते कैसे हैं. तो आप देखोगे ये ट्रेंड आगे आने वाले टाइम में बढ़ता जाएगा, ये डिक्रीज नहीं होगा. So basically this market is booming, it's not declining, for sure. I can understand that. And apart from that, I would like to discuss कि हम ट्राई सिटी एरिया की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कौन कौन सी आपको वो लोकेशंस लगती हैं जहाँ पे एक मतलब there is a gold rush there कि वहाँ पे यार बहुत पैसा कमाया जा सकता है if you invest in those sorts of projects. तो is there something in your mind मतलब जो आप शेयर कर सकते हो probably कि हाँ ये लोकेशंस है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है. आज के टाइम में हम पोटेंशियल की बात करें, जैसे 2015-16 में जब PR7 रोड डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले 10 टाइम सोचते थे, डरते थे कि शुड वी इन्वेस्ट और नॉट. इन्वेस्टमेंट करें तो बेनिफिट होगा नहीं होगा. इट वाज अ कंप्लीट कॉन्क्रीट, यहाँ पे रॉ था, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी. तो उन लोगों ने जब अपनी रिस्क एपेटाइट को बढ़ाया, यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया. फॉर एग्जांपल पर्सन bought a showroom on PR7 in 2015 at the price of 3 CR. Today the same showroom is touching to 12 CR. That is the growth of if you invest in the developing area. तो आज के टाइम में जो डेवलपिंग एरिया है, जैसे अभी हमारी सिटी में सिर्फ PR7 डेवलप हुई है, विच इज़ कॉल्ड पेरीफेरी रोड 7. मोहाली की बात करें जो आज के टाइम में एक सबसे
हैवी ट्रैफिक वाली रोड है मोहाली की, जो इंटरनेशनल रोड को कनेक्ट करती है। तो अभी ऐसे टोटल 13 हाईवेज और बनने हैं, PI1 to PI13। तो ऐसे 13 हाईवेज और बनने हैं, तो वो सारे आपके डेवलपिंग एरियाज हैं। अभी PI1 का काम स्टार्ट हो चुका है, PI8 का, PI11 का, PI4, PI6, PI9 इज टचिंग टू 7। तो आज के टाइम में ऐसे बहुत से एरियाज, पोटेंशियल एरियाज हैं मार्केट में, जहाँ पे आज के टाइम में वो ही सेम ग्रोथ हम 10 साल बाद देखेंगे जो हमने PI7 पे देखी। आज भी टाइम नहीं गया। ऐसा नहीं है कि एक मिसकंसेप्शन है कि जो प्रॉपर्टी ने पीक लेनी थी वो ऑलरेडी ले चुकी है, इसके बाद एप्रिसिएशन नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, अभी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। सो मतलब अभी ये एक्सपैंड ही हो रहा है। it will be keep on expanding as far as I can understand. See, Rahul, population is growing. Now we are touching to 144 CI population in India, and real estate is something which is compulsory. जैसे आपकी बॉडी के लिए पानी पीना कंपल्सरी है ना, आपको फूड लेना कंपल्सरी है, वैसे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कंपल्सरी है। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शनल है। आपके पास गोल्ड हो ना हो, डजेंट मैटर। आप इक्विटी, कमोडिटीज या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते, दैट ऑप्शनल। रियल एस्टेट इज नॉट ऑप्शनल। आप हम जहाँ बैठे हैं आज के टाइम में, इट्स ए रियल एस्टेट। आप ऑफिस में हैं, इट्स ए रियल एस्टेट। आप जहाँ सो रहे हैं, जिसको यूज़ कर रहे हैं घर पे, that's a real estate. You go out and buy a grocery, that's a real estate. You go and to enjoy in a malls, that is real estate. तो real estate is not an optional thing कि आप उसको लो या ना लो वो चल जाएगा. It's a mandatory. तो real estate investment is mandate, and the more the important factor of real estate is that कि real estate cannot be zero. जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा कि कमोडिटीज़ ऐसी एक मार्केट है जिसको हमने कभी माइनस में नहीं देखा, क्रूड ऑयल से नेचुरल गैस को हमने वो भी माइनस में देखा ड्यूरिंग कोविड। गोल्ड डिप हुआ, सेंसेक्स डिप हुआ, निफ्टी डिप हुई। रियल एस्टेट जीरो नहीं हुआ। देयर आर मेनी स्टॉक्स इन द इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट जो उस टाइम पे जीरो हुए, माइनस में गए। रियल एस्टेट आपका जीरो नहीं हो सकता कभी भी। वो आपका हार्ड एसेट है, इट्स ए यूजेबल एसेट, जिसके पास आपकी कीज़ है, जहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने कंफर्ट के लिए या रेंटल के लिए या अदरवाइज के लिए। तो रियल एस्टेट इज मैंडेटरी, आई थिंक। एंड आई कैन सी दैट एज वेल, बिकॉज बेसिक नेसेसिटीज क्या होती हैं एक आदमी की? रोटी, कपड़ा एंड मकान। सो यू हैव टू हैव सम, एटलीस्ट सम प्लेस टू लिव, है ना? मतलब कि कुछ तो चाहिए आपको। तो ये जो कहावत आपने बोली, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन, एंड इट इज स्टिल ट्रू टू दिस डे। या एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स मैंडेट। इसको आप किसी भी वे में, ऑप्शनल वे में नहीं डाल सकते। यस। सो उसके बाद एक बहुत हॉट टॉपिक आता है कि मतलब अगर कोई मतलब ही सोच रहा है मकान लेने के बारे में या अपार्टमेंट लेने के बारे में, शुड ही बी गोइंग फॉर रेंटिंग अ प्लेस और बाइंग दैट प्रॉपर्टी? So what would be ideal? Just your take. I would like to. So depend upon the ये एक स्टेज होती है बाय करने की। वैसे what I always believe is buying is always a first priority. But आप किस आज के टाइम में स्टेज में हैं? For example, आप आज के टाइम में someone is moving to Bangalore for a job or maybe Delhi NCR for a job. अगर उसको वहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है अपने करियर की कि yes there is a growth of my career in Bangalore, तो he should definitely buy in particular city, right? आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी किड्स हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, यू नीड अ होम, तो वहाँ बाय करो। रेंटल इज टेम्परेरी। आप देखोगे आने वाले टाइम में रेंटल, जो अपार्टमेंट चंडीगढ़ में या जो घर चंडीगढ़ में आज से 10-15 साल पहले 10,000 रुपीज़ में मिलता था, आज वो सेम अपार्टमेंट 25-30 पे पहुँच चुका है। तो रेंटल बढ़ते जाएंगे। एक टाइम आ सकता है कि जिसमें आपकी सैलरी में आप रेंटल को अफोर्ड ही ना कर पाएँ। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जो लोग अपने घर में थे दे आर सेफ, जो लोग रेंटिंग पे थे वहाँ पे उनको लैंडलॉर्ड्स ने की प्रॉब्लम्स आई बिकॉज वो रेंटल नहीं दे पा रहे थे, सैलरीज रुक गई थी, कई जॉब्स चली गई। तो ऐसे पेंडेमिक आगे भी आ सकते हैं। तो आपका एक ऐसा एसेट ज़रूर होना चाहिए
चलो अब मैं इसको भी कंसीडर करता हूँ कि यू आर वर्किंग इन बैंगलोर बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इन बैंगलोर, बट आप अपने होम टाउन में एक घर बाय करके रखिए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या एक ऐसी सिटी में जहाँ पे आज आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट यू हैव वन एसेट टू लिव। आपको पता हो कि एनीथिंग हैपेंड टू माई करियर, टू जॉब, टू माई कंपनी, कोई अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, कुछ मेजर ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, एटलीस्ट बैकअप पे आपके घर है। चाहे वो एक आपको ना मेंटल सिक्योरिटी देता है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बिकॉज जो आपने एसेट बाय किया हुआ है आप उसकी EMI पे कर रहे हो, आप उसकी EMI पे कर रहे हो बट आप उसको यूज नहीं कर रहे, बट वो एसेट ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट कर रहा है, इट वर्किंग। 10 साल पहले फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट बाय किया बट 10 साल आपने उस प्लॉट को यूज नहीं किया, तो जो प्लॉट 10 साल पहले एवोसिटी में 20,000 रुपीज का था, आज वही सेम प्लॉट 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है। 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अगर उस टाइम 20 लाख रुपए का था, आज वही सेम 100 स्क्वायर का प्लॉट 1 CR का है। दो आपने उसको यूज नहीं किया बट उसने अपनी अप्रिसिएशन दी। आपके पास एक फाइनेंशियल एसेट है जिसको आप कभी भी लिक्विडेट करके आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपके बच्चों की मैरिजेस हो सकती हैं, आपके मेडिकल बिल्स हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आप रियल एस्टेट को बाय करके रखना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में आप फिर भी अफोर्ड कर लोगे, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि yesterday I was in Delhi, तो I was sitting in Greater Kailash, तो वहाँ पे I asked a person कि एक छोटी सी शॉप है वहाँ पे, the size of the shop must be 10 by 40 or 10 by 30, तो I said what's the rental of this shop, so he said 2.5 lakh rupees of 10 by 30 ground floor shop, and मैंने कहा what's the cost of entire building in Greater Kailash market, तो he told me sir it's close to 25 CR। तो आप देखो कि आज दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के अंदर एक छोटी सी जगह का प्राइस 20-25 CR है, विच नोबडी कैन अफोर्ड। आज के टाइम में अगर मैंने भी कमर्शियल बाय करना है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ कमर्शियल। इवन मोहाली में भी आज देखो ये देख सकते हैं कि शोरूम्स आर टचिंग टू 15 CR, 11 CR, 21 CR। तो आने वाले टाइम में ये और ग्रो करेंगे। तो आपको रियल एस्टेट का कोई भी एक एसेट, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, आप बाय करके रखिए। अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं द बेस्ट वे, जहाँ पे आप वर्किंग है, जहाँ पे आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, आप वहाँ रहिए, उस एसेट को यूज़ करिए। अदरवाइज यू शुड हैव वन रियल एसेट एट लीस्ट। Yes, because real estate, I would say कि one of the safest investment, because आपसे मतलब गोल्ड यू स्टिल हैव दैट, मतलब कि बैक ऑफ द माइंड की यार चोरी ना हो जाए, बट रियल एस्टेट की वो पड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये, सब लोगों के दिमाग में, किसी के पास भी सबसे पहले पैसा आता है तो ही थिंक्स अबाउट, एंड इवन उनके जो एल्डर्स होते हैं घर पे, वो कहते हैं कि कोई ज़मीन ले लो या कोई घर ले लो। तो ये इनबिल्ट है सब में, तो हमें मतलब वो चीज़ एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की ओर से मान सकते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज, डोंट यू फील लाइक कि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड प्राइसेस है? आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड कि चंडीगढ़ में, आई डोंट नो इन सेक्टर 8 और 9, आई एम नॉट श्योर, 2 कनाल की प्रॉब्ली कोठी एक 200 CR की उसकी आस्किंग है। आई डोंट नो व्हाट इज द केस, बट 200 CR फॉर अ प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़? That must be you must be wrong. That's a plot size of almost 10 canal. Okay. It's a 5,000 square yard. The asking price is 200 CR. That's right. That's right. Don't you think? I mean, this is mind boggling. मतलब 200 CR इतना तो वहाँ भी नहीं होता। हम US में भी चले जाएं, वहाँ पे भी नहीं इतने प्राइसेस होंगे। See, again, जब भी कोई बड़ी साइज की प्रॉपर्टी आती है तो definitely the person who wants to buy that particular property, he must be any who's who. राइट। तो आज उस प्रॉपर्टी की न्यूज़ के बाद चंडीगढ़ में एक अलग सी हाइप बन गई है। द पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो डेफिनेटली उसको बाय करेगा। आज के टाइम में आप देखिए कि ज़ीरकपुर एरिया में या मोहाली एरिया में, जहाँ पे हम पहले 8 से 10, 5-6 साल पहले हम फ्लैट देखा गए थे 80 लाख, 1 CR, 70 लाख, 50 लाख, मोहाली की मार्केट में 7 to 8 to 9 CR के अपार्टमेंट बने, एंड उसको मार्केट ने एक्चुअल कंज्यूम किया।
देयर आर बायर्स इन द मार्केट who are चंडीगढ़ willing to जैसी invest मार्केट में that sort of money. जो उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए वेट कर रहे थे कि दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू बी मेड. मार्बेला ग्रैंड एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने 7,111 स्क्वायर फीट का दे मेड अपार्टमेंट विच इज़ 5+1 BHK. तो सबने लगा कि बहुत बड़ा साइज है और ये मार्केट में इतना जल्दी ईजी नहीं होगा बेचना. बट हुआ क्या, विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 to 3 months all the units are sold out, and that one apartment costing was 7.10 something. तो 7 करोड़ के आसपास का वो अपार्टमेंट था. तो वी आर शॉक्ड कि येस दिस मार्केट हैज़ द पोटेंशियल. जो हम पहले मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, दिल्ली में सुनते थे कि 20 करोड़ का फ्लैट, 15 करोड़ का फ्लैट, आज वो मोहाली में होने लगा है. और आप ये देखेंगे आने वाले टाइम में कि मोहाली मीन्स बाय 2030 और 2032 आफ्टर 8-9 years you will see मोहाली में अपार्टमेंट विल टच टू 18 CR, 15 CR, 20 CR. इस मार्केट में वो पोटेंशियल है, यहाँ के पर्सन्स में वो पोटेंशियल है बाय करने का. So what it means ki there's a lot of money to be made for investors, basically for real estate investors, by investing in the apartments itself. Okay, got it. So obviously you must have known about the real estate crash of 2008, the Lehman Brothers, I'm sure. So first of all, I don't know what this crash situation is. I would like to know about that. और क्या आपको लगता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी प्राइसेस इन्फ्लेटेड लग रहे हैं कि मतलब इतने प्राइसेस नहीं होने चाहिए, तो क्या कुछ टाइम में ऐसा कोई क्रैश एक्सपेक्टेड है कि जिसके लिए लोगों को रेडी रहना चाहिए और उसमें अपॉर्चुनिटी हो ऑब्वियसली कि इफ़ समवन हैज़ मनी दैट इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट, मतलब बेसिकली से हमेशा एक क्राइसिस में वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट इट ऑल डिपेंड कि आप उसको कैसे ढूंढते हो, किस वे से इन्वेस्ट करते हो. रियल एस्टेट इज़ द ओनली सेक्टर इंटायर वर्ल्ड विच सपोर्ट इकोनॉमी ऑल्सो ऑफ द कंट्री. रियल एस्टेट इज़ नॉट ओनली सेलिंग परचेजिंग. जहाँ पे आज हम बैठे हैं ये बिल्डिंग में 20 से 25 डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हुई हैं, नॉट ओनली रियल एस्टेट. चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो टाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फॉल सीलिंग हो, आर्किटेक्ट, इंटीरियर, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, AC and kitchen equipments, wooden work, and even IT these days. तो आप देखो कि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45%. ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है इट्स नॉट सपोर्टिंग इकोनॉमी, इट्स सपोर्टिंग इन अ वेरी माइनर वे बिकॉज यू आर सेलिंग कार्स. अब कार्स के अंदर क्या मटेरियल यूज होता है, हार्डली 5 से 6 स्टफ है. रियल एस्टेट इज एंडलेस. रियल एस्टेट में बहुत सी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं जो इसके साथ ही इक्वली ग्रो करती हैं. जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतनी ज़्यादा लेबर की डिमांड आएगी, उतने ज़्यादा इंटीरियर्स की डिमांड आएगी. तो इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, इट गिव्स वर्क्स टू अदर इंडस्ट्री, it invite many international brands and clients also. जैसे आज के टाइम पे देखिए कि ज़ीरकपुर was the first Starbucks drive through. यूनिक्लो का पहला स्टैंड अलॉन शोरूम ज़ीरकपुर में खुला हुआ है. खुला किस पे? रियल एस्टेट में खुला है. कंसेप्ट आया, किसी एक डेवलपर ने एक माइंड लगाया, उसने उस कंसेप्ट पे क्लाइंट को इनवाइट किया. आज के टाइम में यूनिक्लो का एक स्टैंड लॉन्च शोरूम ज़ीरकपुर में हो, इन दी एंटायर इंडिया वो कहीं स्टैंड नहीं करता. स्टारबक्स ओपन फर्स्ट ड्राइव थ्रू ऑफ देयर हिस्ट्री इन ज़ीरकपुर. देयर आर मैनी कमर्शियल्स हम देखते हैं, जैसे मोहाली में जो ब्रांड्स हमने पहले कभी 10-15 साल पहले हमने नहीं देखे थे यहाँ पे, चाहे वो कलेक्टिव हो या H&M हो, ज़ारा, वो क्लाइंट्स भी आज के टाइम में यहाँ हैं. Why? Because this market has the potential. This market has the potential, and वो आप देखिए कि इसको हम इसमें भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे उस टाइप की ऑडियंस है जो उसको कंज्यूम करती है. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा कि रिसेशन के टाइम पे कैसा क्या होता है, तो डेफिनेटली रिसेशन के टाइम पे प्रॉपर्टी डिप करती है.
बट एज आई टोल्ड अर्लियर, रियल एस्टेट कैन नॉट बी जीरो. रिसेशन में के टाइम पे या किसी पेंडेमिक सिचुएशन में या किसी डिसास्टर में, चाहे वो नेचर डिसास्टर हो, एक्ट ऑफ गॉड, चाहे फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, आपका रियल एस्टेट कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता. वो ज़ीरो नहीं हो सकता. आप गोल्ड आपका स्नैच किया जा सकता है, आपकी कमोडिटीज़ इक्विटी के शेयर ज़ीरो हो सकते हैं, मार्केट क्रैश हो सकती है, कोई एक ऐसी न्यूज़ आई या कोई बैंक क्रैश हुआ वहाँ पे वो डिप हो सकती है. रियल एस्टेट के प्राइजेस हो सकता है एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक या एट द टाइम ऑफ रिसेशन वो थोड़े डिप करें 20-30-35%. बट अगर आप उसमें एक उसको होल्ड कर जाते हैं उस एसेट को उस पेंडेमिक में भी, तो आप पेंडेमिक के बाद उसकी ग्रोथ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या ग्रोथ होगी. So the last question I would be having is, obviously if someone is looking to invest into a project or buying an apartment, there has to be trust and मतलब बनना ज़रूरी है कि whether the builder or the developer of the project would be able to deliver it successfully. तो उस चीज़ को हम कैसे इंश्योर करें, और क्या इसके मतलब अगर मतलब कुछ भी केस ऐसा हो सकता है कि शायद वो ना कर पाए, तो उस केस में क्या होता है, एंड हाउ यू गाइज आर हेल्पिंग योर क्लाइंट्स की ये चीज़ें उनके साथ ना हो. See, prior to 2016 ना everything was blank. It was a purely risk. बिल्डर ने क्या बनाना है, क्या वो बना के देगा, क्या लेआउट्स होंगे, क्या मटेरियल यूज़ करेगा, किसी को नहीं पता था. और बिल्डर वॉज नॉट आंसरेबल टू एनीवन बिकॉज उसने कहीं ये पब्लिश नहीं किया हुआ. बट उससे पहले क्लाइंट एक रिस्क में रहता था कि वो जिस डेवलपर को पैसा दे रहा है वो सेफ है कि नहीं है. फ्रॉड्स हुए भी हैं, मैं ये नहीं कहता. हम नोएडा मार्केट में बहुत से ऐसे स्कैम्स हुए हैं, मोहाली मार्केट में हुए हैं, बॉम्बे में हुए हैं, एनसीआर में हुए हैं. उस सबको देखते हुए 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी फाउंड की थी, रेवा, विच इज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. रेवा के आने के बाद धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होने लगी. आज के टाइम में फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय, फॉर एग्जांपल यू मस्ट बी एज पर मीन्स अकॉर्डिंग टू यंगस्टर एज. आज के टाइम पे अगर बाय करना जाते हैं ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपके पास ऑप्शन है, आप रेवा की वेबसाइट पे जाओ, आप उस बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करो. वहाँ पे उस वेबसाइट पे रेवा की आपको ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट इज डिक्लेयर्ड बाय द बिल्डर. Lands belongs to whom, who are the directors, what is the layout, what material they are going to use, when they are going to deliver, what's the height, what is the square meter area, कितनी amenities आपको बिल्डर क्लब हाउस बना के देगा, कितना ओपन एरिया वो ओपन छोड़ेगा, कितनी पार्किंग देगा, कितना FAR है, कितनी आपकी सीलिंग हाइट है. हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट आपको रेवा की वेबसाइट पे दिख जाती है. इट्स ए बिग एडवांटेज आफ्टर रेवा. It's been just 8 years, 2016 to 24. बहुत सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं. आने वाले टाइम में ये इनकी पॉलिसीज़ और स्ट्रिक्ट होती जाएंगी. रेवा की जो बॉडी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ज़्यादा पॉलिसीज़ लाएंगे, एंड वो एग्जीक्यूशन होगी, और उनकी जो एक स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो मार्केट के फेक डेवलपर्स हैं या जो मार्केट के डेवलपर्स वो हैं जिनका माइंडसेट है सिर्फ मनी स्कैम करना, वो इस मार्केट से गायब हो जाएंगे. Okay, so there is a regulatory body by the central government that holds them accountable and even punishes them in the case of fraud or something. Yes, and it's all over India. Every states have their own रेवा, जैसे महारेवा, HR रेवा, PB, पंजाब, HP. हर स्टेट का एक अलग रेवा नंबर है. और फॉर एग्जांपल एक ही डेवलपर के फॉर एग्जांपल 15 प्रोजेक्ट्स हैं. अब ऐसा नहीं है कि उस 15 प्रोजेक्ट का एक ही रेवा नंबर होगा. उन 15 के 15 प्रोडक्ट्स का अलग 15 रेवा नंबर्स होंगे. आपने क्या करना है, इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका रेवा नंबर लीजिए, वेबसाइट पे डालिए, उसको क्लिक कीजिए. आपके सामने उस लैंड की रजिस्ट्री से लेके उसने क्या सबमिशंस किए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के उसके पास NOC है, कितने फंड्स यूटिलाइज होने वाले हैं उस प्रोडक्ट में. फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट 500 करोड़ का है या 1000 करोड़ का है या 15,000 करोड़ का है, कितने फंड्स यूटिलाइज होने वाले हैं,
क्या उसकी कैलकुलेशंस हैं, क्या क्या उसमें अप्रूवल्स आई हुई हैं, चाहे वो हाइट की हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की हो, नहाई की हो, आपको सब ट्रांसपेरेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है. प्रायर टू 2016 देयर वाज नथिंग. आप क्या उस टाइम क्या चेक होता था कि बिल्डर क्या बैकग्राउंड है, कौन सी सिटी से है, कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, सिर्फ इतना देखा जाता था. आज के टाइम पे बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं. अगर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि बिल्डर ने आपको कमिट किया है कि आपके जो फ्लैट का रूम साइज़ होगा वो 11/13 होगा, बट व्हेन यू एंटर्ड, जब आपको पोजेशन मिलता है, पोजेशन के टाइम पे आप देखते हैं कि मेरा रूम साइज़ 10/12 है या 10/10 है. जो कमिटेड था वो नहीं मिला आपको. उसने क्लब हाउस 15,000 स्क्वायर फीट का बोला था, 5 स्टोरी, बट उसने सिर्फ 3 ही स्टोरी बनाया है. बट रेवा में जो उसने कमिट किया है, जो डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए हैं, उसको वो एक्चुअल डिलीवर करने पड़ेंगे. अगर वो 0.1% भी चीज़ें मिसमैच करता है, चाहे वो बालकनी साइज हो, चाहे वो आपके कॉमन एमिनिटीज़ हो, चाहे वो पार्क्स को नहीं बनाता, या उसने अगर बेसमेंट अप्रूव करवाई है, बेसमेंट नहीं बनाना, तो उस पर बहुत हैवी पेनल्टी है और उसका रेवा नंबर कैंसिल हो सकता है. उसको कोई भी फर्दर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने दिए जा सकते. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी आने वाले टाइम में आप देखेंगे बनेगी. और रियल एस्टेट एक बहुत ही प्रोफेशनल इंडस्ट्री बनती जा रही है आज के टाइम में. पहले के टाइम में जो एक ब्रोकर होता था उसको बहुत ही लाइटली लिया जाता था. आज के टाइम में देयर आर वेरी बिग फर्म्स लाइक they are working as a corporate. There are companies in Delhi, Bangalore, Delhi and Pune. They are working like a corporate, like 2,000 to 2,500 people are working in a consultant firm. Yes. Talk about Anabog, talk about IC or maybe PropTech करके कंपनी है. वहाँ पे 2,000 प्लस की एम्प्लॉयमेंट है जो एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं. तो आज के टाइम में इट्स ए बिग इंडस्ट्री टू वर्क इन. बहुत सी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी पे स्किल्स बहुत अच्छा है. तो रियल एस्टेट इज सपोर्टिंग इन एवरी मैनर टू द इन द कंट्री. ओके, आई कैन सी दैट कि मतलब अभी जो रिस्क है काफ़ी निग्लिजिबल हो गया. 2016 के पहले ऐसा कुछ नहीं था. नाउ देयर हैव बीन ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट. मतलब कि आपने काफ़ी आज ऐसे मिथ्स और डाउट्स वगैरह क्लियर किए जो मतलब कि किसी ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये डाउट्स ऑब्वियसली होते हैं. द पीपल आर fearful ऑफ दैट. तो इफ समवन वांट्स अ प्रॉपर गाइडेंस और कंसल्टेशंस, where can they actually find you in Tri-City? So people can find us on every social platform. We have presence in every social platform. They can connect with our team. और हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट comes under Zivakpur. It's very near to Radisson Hotel and Gopal Suites. These are the landmark. And Blue Sky Infra के बारे में you get all the information on website and social pages, and there are many videos which we have shoot for the projects and all. So they'll get very guidance at proper. They come to know about the properties very easy because I have explained so much on the social platform. So it's very easy to connect us. They can connect us anytime. Oh, that's great. Thanks a lot, Mr. Rahul, for connecting. So it was pleasure having on your it was pleasure having on your platform, and it was a very knowledgeable session, I think so. And I also learned a lot of things from you also, and you learned about the real estate. Definitely, yes. So thank you so much. Thank you. Bye-bye.